Assalamu alaikum. Second year physics, chapter 19, modern physics, and the topic is black body radiations. What is black body? A body which absorbs all the radiations, falls upon it, and emits radiations of energy is called black body. ब्लैक बॉडी क्या है? एक ऐसी बॉडी जो तमाम रेडिएशन को क्या करे, ऑब्जर्व्स करे और इमिट्स करे रेडिएशंस को। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी कैन ऑब्जर्व्स radiations more than other color body. Perfect black body. A perfect black body is defined as a body which absorbs all the radiations of all wavelength falling upon it. When perfect black body is heated, they emits radiations of all wavelength. परफेक्ट बॉडी एक ऐसा ब्लैक बॉडी है जो तमाम रेडिएशंस को क्या करे, अब्जॉर्ब्स करे। अगर उसके ऊपर क्या हो जाए, पड़ जाए, फॉल हो जाए। अगर हम एक ऐसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी को हीट दे दे तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट्स करेगा, जिसमें क्या होगी, तमाम वेवलेंथ होगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, a perfect black body cannot exist, but nearest approach to such a body is a cavity of iron or copper having small hole in the cavity. The inner wall of the cavity is coated with some good absorber. When the radiation enter into cavity, then after several reflection inside cavity, they are absorbed. परफेक्ट ब्लैक बॉडी मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी करीब तर कोई ब्लैक बॉडी क्या है, कैविटी के फॉर्म में, जो किस मटेरियल से बनाते हैं, आयरन से या कॉपर से। और इस कैविटी में क्या स्मॉल होल होता है। इस कैविटी के इनर वॉल्स को हम गुड ऑब्जर्वर से कोट करते हैं। जब एक दफ़ा रेडिएशंस थ्रू स्मॉल होल इंटर हो जाए टू कैविटी, तो कई दफ़ा रिफ्लेक्ट होने के बाद रेडिएशंस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है। When the wall of the cavity is heated to some uniform temperature, radiations are emitted from the cavity. अगर हम इस कैविटी के वॉल्स को हीट करें यूनिफॉर्म टेम्परेचर से, तो रेडिएशंस क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इस रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, द कैविटी। सच रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कैविटी रेडिएशंस और टेम्परेचर रेडिएशंस। तो इन रेडिएशंस को जो ब्लैक बॉडी से इमिट होते हैं, इसको हम कैविटी रेडिएशन कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, या इसको हम टेम्परेचर रेडिएशंस कहते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स and energy distribution diagram of black body. The amount of radiations emitted with different wavelength is shown in the forms of energy distribution curve for each temperature. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को हम किस फॉर्म में प्लॉट करते हैं या ड्रा करते हैं, वेवलेंथ और इन वेवलेंथ की एनर्जी की फॉर्म में। तो ये करो रिप्रेजेंट्स करते किस चीज़ को, वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस। द फर्स्ट करो रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट वेवलेंथ whose temperature is 980 degree Kelvin. The second curve represents the wavelength of the second radiations whose temperature is 1050 degree Kelvin. The third curve represents the third wavelength whose temperature is 1259 degree Kelvin. The fourth curve represents the fourth wavelength whose temperature is 1449 degree Kelvin, and the fifth curve represents the fifth wavelength whose temperature is 1646 degree Kelvin. These diagrams show that the wavelengths decrease when increase of
temperature. The wavelength, the first wavelength is longer than the second one, and the second wavelength is longer than the third one, and the third wavelength is longer than the fourth one, and the fourth wavelength is longer than the fifth length. This shows that when the temperature is increased, the wavelength of the radiation is decreased. The characteristics or the property of black body radiations are: first property or characteristics of black body is the black body radiation is independent size, shape and material of the black body but depends upon only on temperature. ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है किसी बॉडी की साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर या मटेरियल के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता, बल्कि सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. सेकंड प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज विद टेम्परेचर. इन रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है या जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल वेवलेंथ. एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है तमाम वेवलेंथ के लिए, बट वेरीज विद वेवलेंथ. लेकिन वेवलेंथ के साथ क्या होती है, चेंज हो जाती है. इसके बाद विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ. फ्रॉम द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करो we see that wavelength of the radiation shift towards shorter wavelength with increase of temperatures, which obeys wind displacement law. wind displacement law क्या चीज़ है? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये शो करता है कि इन रेडिएशंस की वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती, चेंज होती है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते जाए तो वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है. विच ओबेज ऑन विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. एंड वी स्टेट दैट विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेटमेंट इज दिस लॉ स्टेट दैट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कि मैक्सिमम वेवलेंथ इन रेडिएशंस की इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करें तो वेवलेंथ जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शन है. किस तरह लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, लैम्डा एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेयर लैम्डा रिप्रेजेंट वेवलेंथ, एम रिप्रेजेंट मैक्सिमम और टी रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. हमारा इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/t, वेयर कांस्टेंट इज के. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा एम टी इज इक्वल टू के, वेयर के इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.9 × 10⁻³ मीटर × केल्विन.